but in this corporate because of this lockdown there are many webinars. ये क्यों हो रहा है पता है? देखिए अभी जो एजेंसीज इंडिया के अंदर है, ये एजेंसीज आकर ये कॉर्पोरेट केसेस को संभालती है. इनका जो चल रहा था धंधा पानी ये सब वो बंद हो चुका है, बिजनेस वो बंद हो चुका है. अभी इन लोगों के पास, अब इनको पता है अगर हम स्टूडेंट्स को ग्रैब करके थोड़ा नॉलेज देंगे तो हमें क्या मिलेगा, मतलब थोड़ा फंड राइज हो जाएगा. हमें I wanted to point it out actually. Yeah. Please continue. हाँ, हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं. तो इस चीज की वजह से ये लोग क्या करते हैं, पहले आपको 5 to 10 मतलब 5 मिनिमम 3 to 5 आपको फ्री दे देंगे, मतलब फ्री दे देंगे. ये उसके सिर्फ बाद इसलिए कि आपको अट्रैक्ट करने के लिए, एग्जैक्टली आपको अट्रैक्ट करने के लिए सर्टिफिकेट भी देंगे और आपको ग्रैब. So bro, firstly welcome to my channel, welcome to this forensic podcast. It is the second that I'm doing with you. The first is out today actually, right now. So before we get into this detail and before we get into this main part of this podcast, I would like to ask you that you becoming a cyber forensic expert, right? Yeah. When did you think that it could be a career option for you, like become a cyber expert here in India, basically? So you're asking about the cyber forensic expert career in India? Yeah. Like when? See, you can do it. You can do something in this line, and you can make a career out of it. Yeah. See, one thing is cyber is like a growing field. Okay. Here, what is like is cyber is connected to everything. Okay. If you see anything like many social media is increasing, and even many jobs are going because they are implementing the digital facilities. You have come across many hotels where a robotic system is implemented, right? So as the technology is growing, even the crime is also growing. Okay, it is according to a report of 2016, it is the second most committed crime, which is cyber crime. Okay. Right. So here you have enormous number of scope. Here you can get job anywhere in IT sector. Even if you want to work completely in forensics, like cyber forensic, computer forensics, you can go in this field. But here when we'll use the forensic, here we are challenging the court. We are challenging court reports. We are giving our expert testimonies, expert reports. Okay. So here completely it is based on where there are many other things like cyber security, where they will use their technology to secure the network, to secure the information, user data. But here when cyber forensics is applied when the crime is committed, okay, to solve the crime, how the crime is committed. So here as the technology is growing, so it is easily we can guess that we'll get the more job opportunities also. So no doubt in that. So if any student want to be in cyber forensics, if he want to be a cyber forensic expert, he have to go everything technically. Like for example, complete dry subject like MSc forensic science, BSc forensic science. These students don't have much scope in cyber field because they used to learn all the things. They will not only learn cyber, they will not only learn question documents, they will learn all the branches of forensic science. Okay. So that is important thing. If you want to take career in cyber forensics, cyber security, you have to go like the persons who are from BCA, like the Bachelors of Computer Applications, or else BSc and then MSc in cyber security or cyber digital forensics. They have much scope in this. And even if you go and search for vacancies of FSL, CFSL labs for cyber divisions, they will ask BCA and MSc cyber forensics, digital forensics, and later forensic science. It is included. If you all the divisions of forensic science, like physical divisions, ballistic divisions, they have forensic science eligibility. But the student who will come from BSc forensic science, MSc forensic science, they'll get the preference. No, they will not get placed in CFSL. Okay. Yeah, because these things no one will tell you. See, when we come up, let me tell you these things. Right? Sure.
when we talk about the working sectors of forensic science, I will discuss this cyber thing later. First, All right. let me discuss about the forensic sector. Yeah. When we come across the forensic sectors, we have like 4 categories. One is your government sector, that is CFSL, FSL labs. Okay. And next is private sector. And the third is teaching sector, and the next last is medical sector. Yeah. Okay. Yeah. So when you are talking about government FSL, CFSL lab, here we have 2 types of recruitments. One is this one, scientific officer, senior scientific officer, and laboratory assistant. Yeah. Okay. Here even will come as a junior forensic assistant. Okay. Okay. The job criteria is only based on 2 types, that is contract basis and permanent basis. Permanent basis. Yeah. When we speak about the contract basis, the job eligibility is MSc Forensic Science, that is first option. Yeah. And MSc Chemistry or MSc Physics, MSc Biology, and these subjects have to be studied in bachelor's. Bachelor's. Yeah. Yeah. Pure sciences like physics, chemistry, biology, as well as biotechnology, microbiology. Yeah, bro, I would like to interrupt you here once. I would like to ask you one question, because this thing nobody talks about. The thing is that BSc in pure sciences and BSc in forensic science, do you think BSc in pure sciences get a bit of preferences over a BSc forensic sciences? Yeah. They will get. Even I'm the student of life science. I have done BSc biotechnology, genetics. You told me that. Yeah, I have done bachelor's in life science, and I have taken MSc Forensic Science. So I have better scope. If I go in this one, biology division or chemistry division, I can get placed easily. Okay. And the student who comes from BSc Forensic Science and the student will take same MSc Forensic Science, they are not eligible for this contract basis. Okay. In CFSL labs. That thing we have to understand. Okay. If any student want to be in forensic science, they have to go from BSc Life Science, Pure Science. Yeah. They have to take these subjects, and then they have to come for MSc Forensic Science. Okay. Then they will get the eligibility to study to work in CFSL as a contract basis or permanent basis. Okay. Yeah. And next is permanent job eligibility. So here we'll have like each state has a FSL has its own standard procedure for recruitments, depending upon the division how they recruit. And there is no similar type of procedure in all the states. Every state have their own procedures. And and the vacancy here come time to time at state level and central level. Okay. And here UPSC will conduct interviews time to time for getting higher positions or grading FSL, like directorate position and other positions. And in similar things, if you want to go for any similar divisions, you can take up their exams, which will come yearly once. You can go with that, and you can because even if they leave the vacancy will be in single digit. Okay. Like only for if you take cyber forensics, you will get only 4 to 5 vacancies. If you take ballistics, similar, like 5 to 6 vacancies. So out of these 5 to 6 vacancies, what about the other students? What they have to do? So we can't depend upon this FSL, CFSL. Okay. Yeah. So now this has become now a trend. Like everyone are going in private sectors. Yeah. Okay. Yeah, because private sectors have scope now, because they are taking the corporate cases. As the industries will grow, as the businesses will grow, they will take the corporate cases. Yeah. And here, see, when you speak, like once after completing your masters, you are like last stage of your studies. And after this, you are going to work if you want to work in forensic science. So here, when you are working in forensic science, when you present something in court, when you review some report in court, you are called as expert. Okay. So here, legally, the expert is produced in the court of law as witness. That way, it is known as expert witness. This one we call as expert witness. And there are one more thing. To call oneself or to call ourselves an expert, we need a minimum qualification of MSc, right? And along with that, do we need any kind of experiences like working experience? Yeah, you require experience. Is a minimum period of experience?
not only working experience. See, for example, if you have any kind of a question document case, okay, Yeah. so if you are raising some question, like you are giving your expert opinion based on the facts, and you have to prove it. You have Yeah. to prove that, like on what basis you are telling. You have to explain the things. Okay, so because to explain the things, you have there will be more cross examinations. Okay, Yeah. the lawyers will ask you more cross examination. They will ask you like how we will tell no in exams out of syllabus question. Yeah. Even in court also you will get like this only. They will ask out of your knowledge. They will ask the cross examination, like cross questions. Even they don't know, but they will ask. Okay. So these questions you have to get familiar with all these questions. And the next thing is, this will you will not learn anywhere. This will come with your experience. When you are Experience. start getting cases, when you are Yeah, working with lawyers, Yeah. that time only you will get these things. Yeah. Yeah. And to be expert in forensic science, there is only two types of expert. One is we'll call as FSL and CFSL experts. Yeah. And next That's is the government private appointed experts, like for coming Yeah. from public prosecutor side. Yeah, they are called as FSL, CFSL, who are coming from that laboratories. They are called as FSL experts. Okay, Yeah. and who are like there are many agencies in India, right? Forensic Yeah. agencies. Yeah. Yeah. And Yeah. from any of this agency, anybody come and give expert opinion in court on any case, they will call as private expert. Private experts. Okay. Yeah. And the report which FSL and CFSL experts will give as Yeah. expert witness, Yeah. the report will come under section 293 of CRPC. Okay. 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 And the private report which the private expert will give, it will come under it, and it is admissible under section 45 Indian Evidence Act. Yeah. This you have to understand. Yeah. What is the difference between a private expert and government expert? Government expert. Bro, one more thing I would like to ask you here. Like for government experts, तो उनके लिए अलग कोई credibility नहीं चाहिए कि वो लोग एक expert है. For a private expert, like his or her report, why the court will accept it as a genuine report, even if he or she has the permission to give their own expert report under section 45 of IEA. So in that case, whether the court will check their working experience or minimum qualification or previous working experiences. Is that a criteria? No. Court, like, see, what if you are going as an expert means you are familiar with the case and you know what and all questions going to encounter you in the court premises. Okay. आप हाँ, तुम्हें मतलब जब हम लोग एक्सपर्ट एज ए एक्सपर्ट हम जब प्रेजेंट करने जाते हैं, हम सब प्रिपेयर होकर ही जाते हैं. ऐसा ही कोई मतलब अभी मैं एक केस के ऊपर एक्सपर्ट विटनेस गया था. वो कौन सा केस है मैं डिस्कस करूंगा. तो अभी इस केस के ऊपर अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं उस चीज का हर एक मतलब A to Z मैं अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए, उस केस को पढ़ना चाहिए और उसके ऊपर कौन से क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकते हैं, मुझे ये सब सीखना चाहिए और उसके बाद में ही मैं कोर्ट में प्रेजेंट कर सकता हूँ अपना एक्सपर्ट टेस्टिमोनी जो भी रहेगा. तो इसके लिए आपको एक्सपीरियंस ही रहेगा. और दूसरा है कि आप अगर आपके क्रॉस एग्जामिन आप अगर देखिए उसमें एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता. अब अगर आप जा रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस मैटर करता है. मतलब अगर आप कहीं प्राइवेट सेक्टर पे काम कर रहे हैं किसी XYZ कंपनी में, तो अगर वो आपको एज ए एक्सपर्ट विटनेस भेज रहे हैं तो उनको पता रहेगा कि आप इसको मतलब एक्सपर्ट विटनेस आप हो कर सकते हैं. आप इसको जाके मतलब कोर्ट में कुछ भी क्रॉस क्वेश्चन करें तो आप उसको आंसर कर सकते हैं. इतनी कैपेबिलिटी है आपके अंदर, तो तभी आपको वो भेजेंगे. नहीं तो वो खुद ही जाएंगे और किसी और एक्सपर्ट को भेजेंगे. अगर आप खुद से कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप पहले सीखते हैं इस चीज को. सीखने के बाद थोड़े बहुत केसेस को देखते हैं और एक्सपर्ट कैसे प्रेजेंट करता है आप उसको भी एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं और उसके बाद आप खुद को प्रेजेंट करते हैं. तो ऐसे होता है. और दूसरा है कि हमें कौन सा प्राइवेट, एक मिनट, अगर हम लोग कभी भी मतलब एक्सपर्ट होने के लिए आपको सिर्फ इसी मतलब रिपोर्ट आके अगर FSL CFSL रहा तो लाइक उनका जो लैब का नाम रहता है उसी के उनका जो लेटर हेड रहता है लैब का, उसी के अंदर आपको एक्सपर्ट रिपोर्ट दे सकते हैं आप. और दूसरी चीज, अगर आप प्राइवेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अगर अपनी कोई खुद की कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप उस लेटर हेड से आपका एक्सपर्ट विटनेस दे सकते हैं.
और या फिर आपका लेटर हेड या फिर आपका कंपनी लेटर हेड, ऐसा कुछ आप दे सकते हैं। अगर आप प्राइवेटली कुछ कर रहे हैं तो आपको एक अपना एक टाइटल देना पड़ेगा, अपना एक एस्टैब्लिशमेंट दिखाना पड़ेगा, अपनी ये एजेंसी अपनी एक कंपनी है बोल के, और आपको थोड़े बहुत केसेस लेने पड़ेंगे और उसके बाद आप खुद का एक एस्टैब्लिशमेंट कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। और जो स्टूडेंट्स अभी फॉर एग्जांपल अभी बीएससी एमएससी कर रहे हैं, अगर ये लोग इंटर्नशिप करने जाते हैं तो डायरेक्टली सीएफएसएल एफएसएल जाते हैं। हाँ मतलब एग्जैक्टली। ऐसा है कि हाँ, अभी आप लिंक्डइन में जाके चेक करो, जितने भी स्टूडेंट्स एमएससी कर रहे हैं बीएससी कर रहे हैं, उनका एक ना एक तो डायरेक्टोरेट ऑफ फोरेंसिक साइंस, स्टेट फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी, सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी, रीजनल, ये सब आता रहता है। मतलब वहां पर स्टार्टिंग में ही 1 मंथ 2 मंथ्स का इंटर्नशिप कंप्लीट करते हैं। बिकॉज ये ट्रेंड बन गया है कि हम अपने दिमाग में यही है कि फोरेंसिक पढ़ने के बाद हमें सीएफएसएल आरएफएसएल लैब्स में ही काम करना है, बाहर हमें कहीं पर भी काम नहीं मिलेगा। तो अगर I wanted to ask you it in a separate section actually. तो मैं पूछ ही लेता हूँ, फिर यहाँ पे फिर आप पूरा बताना एक साथ वो सारी चीजें। ओके। मैंने खुद बीएससी कंप्लीट करा अभी, एंड अपार्ट फ्रॉम बीएससी फॉरेंसिक साइंस मैंने अलग से साइबर का एक कोर्स करा था एंड एक फिंगरप्रिंट का ट्रेनिंग करा था अलग से, फिंगरप्रिंट एंड क्यूटी। तो मुझे एक चीज समझ में आया कि डायरेक्टली अगर हम गवर्नमेंट लैब पे इंटर्नशिप करने जाते हैं तो गवर्नमेंट लैब पे ना एक चीज होता है कि आपको हाथ पकड़ के वो सिखाते नहीं, राइट? एग्जैक्टली। they will more intend you, they will more you know आपको डायरेक्ट कर देंगे रियल केसेस पे काम करने के लिए। तो अगर आपके पास एक ऑलरेडी प्रैक्टिस नहीं होता है कि हाउ टू वर्क विद दोस एविडेंसेस, तो वो आप अच्छे से सीख नहीं पाते हो, आप कर भी नहीं पाते हो। तो उसके लिए मुझे ये लगता है कि यू शुड ऑलवेज फर्स्ट गो टू द प्राइवेट लैब्स, बिकॉज दे डू चार्ज मनी, बट दे ऑल्सो वो क्या कहते हैं ना, हाथ पकड़ के सिखाते हैं आपको वो सारी चीजें, लाइक कैसे सबको कलेक्ट करना होता है, कैसे रिपोर्ट लिखना होता है, कैसे काम करना होता है। तो इस पे अगर आप खुल के बात करो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बिकॉज द डे आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल, तो मेरे को 2-3 क्वेश्चन बहुत कॉमन आता है। एक कि इंटर्नशिप हम गवर्नमेंट से करें या फिर प्राइवेट से करें, एंड दूसरा ये कि हमें जॉब कैसे मिल सकता है इन सारी चीजों, मतलब लैब्स एंड प्राइवेट लैब पे। See, for this question there is simple thing. What is that means? First, अगर आपको मतलब आप जो कर रहे हैं अभी, आपने बीएससी किया, आप एमएससी कर रहे हैं, तो आपको इसमें इस बीच में पता चल जाना है कि मुझे इंटरेस्ट कौन सी फील्ड में है। फोरेंसिक साइंस सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं है, फोरेंसिक के अंदर बहुत सारे ब्रांचेस हैं। ओके। और इस ब्रांचेस के अंदर आप मतलब ये एक बंदा हर एक डिवीजन में काम नहीं कर सकता। जो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में एक्सपर्ट रहेगा वो उसी के ऊपर ही फोकस करेगा, जो फिजिक्स में रहेगा वो उसी के ऊपर फोकस करेगा, और जो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में रहेगा वो फिजिक्स के केसेस नहीं ले सकता, और फिजिक्स का वाला बंदा क्वेश्चन डॉक्यूमेंट नहीं ले सकता। तो स्टूडेंट्स को ये समझना बहुत जरूरी है कि हम अपना इंटरेस्ट किस में है और अपना नॉलेज किस में है। अगर आपको टेक्नोलॉजी बेसिस पे नॉलेज ज्यादा है तो आप साइबर फील्ड में आइए, ओके। और साइबर के कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कीजिए, साइबर के वेबिनार्स अटेंड कीजिए, सर्टिफिकेशन कीजिए, और एक्स्ट्रा नॉलेज आप खुद से ग्रैब कीजिए, बुक्स पढ़िए। और जो इसमें साइबर फोरेंसिक में, साइबर सिक्योरिटी में जो भी एक्सपर्ट रहे हैं, आप उनको फॉलो अप कीजिए, और उनके जो आर्टिकल्स रहेंगे आप उसको पढ़िए। तो आपको खुद से ही नॉलेज लेना पड़ेगा, आपको हर एक नॉलेज भी कोई नहीं दे सकता। मतलब जितना अभी मैं नॉलेज दे रहा हूँ मैं अपने बेसिस के ऊपर दे सकता हूँ। आपको जो नॉलेज चाहिए वो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। एग्जैक्टली। ओके। आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन का मतलब अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, मतलब आप एक बंदे से ही एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आपको कई सारे एक्सपर्ट्स को पूछना पड़ेगा, उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको एनालाइज करके आपको उसमें से मतलब आपको उस पे ही काम करना पड़ेगा आपके तरीके से। तो ये हमको समझना बहुत जरूरी है कि हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं फोरेंसिक साइंस के अंदर। ओके। और दूसरी बात है कि आपने जो बताया गवर्नमेंट लैब्स में हमें डायरेक्टली केसेस हैंडल करने देते हैं, ये हाँ देते हैं। अगर उसमें कोई गलती हो गई, मतलब वो जो केसेस आते हैं वो गवर्नमेंट के केसेस हैं। एग्जैक्टली। तो हाँ, अगर फॉर एग्जांपल मैंने जब मैं कॉलेज में था तो आरएफएसएल में हमारा ये चल रहा था। ब्रो फ्रॉम व्हिच कॉलेज आर यू? आई एम फ्रॉम स्कूल ऑफ सोशल वर्क, मंगेली, व्हिच इज इन कर्नाटका। या एंड you did your MSc from there, right? Yeah. And my BSc biotechnology Presently from your base is Bangalore.
Yeah, Bengaluru, which Okay. is you know Kolar, right? Yeah. I know. Yeah, from there. Okay. So तब हम लोग RFSL में थे, तब हमें केसेस को हैंडल करने के लिए दिए थे, मतलब वो एक रेप केस था, तो उसके ऊपर हम टेस्ट कर रहे थे, वो जो क्लॉथ्स रहता है उसके ऊपर ब्लड टेस्टिंग, डीएनए टेस्टिंग ये चल रहा था। तो ऐसे केसेस मतलब वो एक्सपर्ट हमें पहले एक 3-4 बार दिखाते हैं थोड़े सैंपल्स के ऊपर, और बाकी के सैंपल्स के ऊपर हमें करने को छोड़ते हैं, सबको नहीं देते ये केसेस। मतलब आपको कोई सीरियस केस नहीं रहा, नॉर्मल केसेस हैं और उसके सैंपल्स बहुत ज्यादा हैं, तब आपको छोड़ सकते हैं करने के लिए। अगर सैंपल लिमिटेड है, अगर सैंपल डिस्ट्रॉय मींस केस भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो आपको उस चीज के ऊपर काम करने नहीं देंगे। और आप जो बता रहे थे मतलब प्राइवेट लैब्स के अंदर हमें काम करने को मिलेगा पे करने के बाद, बोले तो मतलब देखिए प्राइवेट सेक्टर के अंदर कौन से केसेस आते हैं, ज्यादा से ज्यादा कंपैरिजन केसेस आते हैं, मतलब पेशेंट डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर एनालिसिस आते हैं, हैंड राइटिंग एनालिसिस आते हैं, और ऑडियो वीडियो एनालिसिस, सीसीटीवी एनहांसमेंट, और साइबर में ज्यादा से ज्यादातर डिजिटल, मतलब डिजिटल फील्ड के अंदर आपको डेटा रिकवरी आता है। ओके, डेटा रिकवरी आता है, यही केसेस मिलते हैं आपको। जो एक्चुअल में सीरियस ऑफेंसेस रहते हैं वो नहीं मिलते, वो आपको आरएफएसएल और सीएफएसएल में ही मिलेंगे। और ये जो नॉर्मल कॉर्पोरेट रिलेटेड जो भी केसेस रहते हैं, डेटा रिकवरी और आपको एविडेंस को सर्च करना पड़ेगा, एफटी के इमेजिंग करना पड़ेगा, ऐसे केसेस आपको यहाँ पर मिलेंगे। ओके, सो यहाँ पर भी आप प्राइवेट में भी सब चीज नहीं सीख सकते। अगर आप 1-2 महीने का इंटर्नशिप कर लिया तो ये नहीं कि आप मतलब पूरा सीख जाते हो। 2-3 साल का नॉलेज, हाँ 2-3 साल का नॉलेज मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। फोरेंसिक साइंस ही नहीं, हर एक फील्ड में एक चीज ये है कि आपको हर दिन अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। आपने जो सीखा वो आउटडेटेड हो जाएगा, आप एक बार सीखने के बाद वो आउटडेटेड है। हम ये नहीं समझते, हम क्या समझते हैं कि हमने जो सीख लिया समझो, अब मतलब हम एक्सपर्ट बन गए, हम इस चीज के ऊपर काम करते हैं। आप जब स्टूडेंट रहेंगे तब आपको मतलब जो भी आपके सिलेबस ड्राफ्ट करके आपको सिखा रहे हैं, वो भी कम से कम 5-10 साल के सिलेबस रहते हैं। और जब एक्चुअल में आप काम करने आओगे ना, हर एक केस के ऊपर आपको चैलेंजेस रहेंगे। आज आपने एक डेटा रिकवरी मोबाइल से कुछ डेटा रिकवर कर लिया, कल को सेम डेटा रिकवरी मिलेगा, मोबाइल ही मिलेगा, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस रहेगा। एग्जैक्टली। तो आपको मतलब आपको काम करते करते ही आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। ओके और ब्रो। आजकल और मेन चीज ये जो हो रहा है लॉकडाउन के, मतलब इन दिस लॉकडाउन देयर आर मेनी वेबिनार्स, they are conducting many webinars. See, before this, even if you search means there are limited webinars, for 3 months there are only 2 to 3 webinars or conferences will be going on in forensic science. But in this corporate because of this lockdown there are many webinars. ये क्यों हो रहा है पता है? देखिए अभी जो एजेंसीज इंडिया के अंदर है, ये एजेंसीज आकर ये कॉर्पोरेट केसेस को संभालती है। इनका जो चल रहा था धंधा पानी ये सब वो बंद हो चुका है, बिजनेस वो बंद हो चुका है। अभी इन लोगों के पास, अब इनको पता है अगर हम स्टूडेंट्स को ग्रैब करके थोड़ा नॉलेज देंगे तो हमें क्या मिलेगा, मतलब थोड़ा फंड राइज हो जाएगा। हमें भी मतलब I wanted to point it out actually. Yeah. Please continue. हाँ, हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो इस चीज की वजह से ये लोग क्या करते हैं, पहले आपको 5 to 10 मतलब 5 मिनिमम 3 to 5 आपको फ्री दे देंगे, मतलब फ्री दे देंगे। ये उसके बाद इसलिए कि आपको अट्रैक्ट करने के लिए, एग्जैक्टली आपको अट्रैक्ट करने के लिए सर्टिफिकेट भी देंगे और आपको ग्रैब भी करेंगे। क्योंकि और उसके बाद में क्या इन्वेस्टमेंट बहुत इन्वेस्टमेंट जीरो है यहाँ पे, जो भी आएगा पूरा इनकम कुछ भी नहीं है इन्वेस्टमेंट यहाँ पर। एग्जैक्टली। और दूसरी बात है कि और इनका 4th और 5th वेबिनार जो रहेगा वो पेड रहेगा। और वो क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेशन चार्जेस। सर्टिफिकेशन, अरे भाई पहले तो आप लोग फ्री में दे रहे थे सर्टिफिकेट, अब कैसा सर्टिफिकेट चार्जेस हो गया? आप कोई हार्ड कॉपी नहीं थमा रहे हो स्टूडेंट। एग्जैक्टली। आप तो last day exactly the same thing I was talking with one of my with the friend who is here in the meeting as well, who is hosting this meeting. I was telling to him that this is actually a business. Like if I take example of my channel, I have 600 subscribers as of now, and if I give 2 webinars free and then from the third one I start charging out of 600, at least अगर 60 बंदे भी आता है, and per webinar if I charge 100 rupees, it will go to 6,000. Zero investment. So this is actually a scam going on.
And bro, one more thing I would like to ask you about this is that I've seen many webinars, many agencies conducting webinars during this lockdown, and Yeah. them aren't registered. They are not registered anywhere. They just have a Facebook page or Instagram page or a YouTube channel, and they're conducting webinars and giving away free certificates. तो सर्टिफिकेट का जो वैल्यू है वो तो जीरो हो जाएगा ना, जो बंदे ले रहे हैं पे करने के बाद. आपको सर्टिफिकेट ग्रीन सेम का मिल रहा है क्या? ग्रीन सिग्नेचर का? नहीं. ऐसे कई सारे सर्टिफिकेट्स आपको ये मिलेंगे, सिग्नेचर ही नहीं रहेगा. जो आपको कर्सिव राइटिंग में जो स्टाइल्स का जो कर्सिव राइटिंग आता है उसी में आपको, मतलब अभी मेरा नाम अफरोजुल्लाह खान है, मैं डाल दूंगा नीचे, और मेरा जो टाइटल रहेगा फाउंडर एंड सीईओ ऑफ न्यायिक विज्ञान, मैं डालने के बाद ऊपर जो रहेगा सिग्नेचर नहीं डालूंगा. मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट कर्सिव राइटिंग में अपना एक नाम स्टाइलिश में डाल दूंगा. ऐसे आपको बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे. ये वर्थ नहीं है. एग्जैक्टली मुझे ये चीज कैसे पता चला, क्योंकि मैंने एक दो ऐसे कर दिया था एक और एक्चुअली. तो जब मुझे वो सर्टिफिकेट मिला, व्हेन आई रिसीव सर्टिफिकेट्स, नाइदर देयर वाज एनी सर्टिफिकेट आईडी और अ बारकोड. तो एटलीस्ट दोनों अगर कोई एक भी नहीं होता तो वो पूरा इनवैलिड हो जाता है ना, क्योंकि आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता कि ये उस ऑर्गेनाइजेशन से आया हुआ है. यस. उसके बाद मैंने छोड़ दिया ये सब करना, अगर फ्री में भी हो तो, क्योंकि पूरा स्कैम. हाँ, अगर चाहे तो आप बिना अटेंड करे ही आप उसको डॉक्यूमेंट जो रहेगा उसको कन्वर्ट करके अपना नेम सब एडिट कर लीजिए और अपना साथ सेव कर लीजिए और बोल दीजिए हमने अटेंड किया बोल के. कोई जाके डेटा चेक करेगा क्या? Exactly. So, what would you suggest to all the students out there कि कैसे चेक करें कि ये legit है कि नहीं है? मतलब जो ऑर्गेनाइज कर रही है वो वेबिनार, वो कैसे, वो मतलब एक आइडिया अगर आप दे दो कि कैसे वो फाइंड आउट करे कि ये लेजिट है कि नहीं है. देखो ये चीज क्या है मालूम, मतलब हम अभी ये जो वेबिनार्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अब हम इस बेसिस के ऊपर ये नहीं बोल सकते कि ये जो जेन्युइनली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये नहीं कर रहे, क्योंकि इन्होंने अपना एक रेप्यूटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लिया है. मतलब कुछ फॉलोवर्स गेन कर लिए हैं, कुछ पोस्ट डाल रहे हैं यहाँ वहां से उठाकर, और ऑडियंस को ग्रैब कर चुके हैं ऑलरेडी. ये ट्रैप में है स्टूडेंट्स जो भी है. अभी ये स्टूडेंट, मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स के पास खाने के लिए पैसा नहीं रहता. होटल्स, मतलब ये जो हॉस्टल्स में पीजी में रहते हैं वहां पर रेंट पे करने के लिए इनके पास पैसा नहीं रहता. लेकिन ये स्टूडेंट इतने पागल रहते हैं, मतलब एक नॉलेज अगर कहीं पर वेबिनार चल रहा है, अगर कुछ करना हो तो ये कहीं से भी जुगाड़ करके, मतलब पैसा अरेंज करके उस वेबिनार्स को, इस वर्कशॉप्स को अटेंड कर लेते हैं. मतलब इनका एक ही मोटिव रहता है कि नॉलेज गेन करें, कुछ इनका भला हो जाए. तो इसी एक मतलब ये इमोशनल अटैक रहता है. ये इसी को समझने के बाद ये जो वेबिनार्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अभी नियरली एक ऑर्गेनाइजेशन भी 40-50 वेबिनार्स ऑर्गेनाइज कर चुकी है. एग्जैक्टली. अभी इंडिया के अंदर जो भी फोरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप उनको एक बंदे से भी लेकर चलो, मिनिमम अगर लेस नंबर भी बोले तो मिनिमम 10 सर्टिफिकेट्स तो स्टूडेंट के पास होंगे इस लॉकडाउन में. 25. और किसी, हाँ, अगर आपके पास 25 है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपका 10th सर्टिफिकेट कौन सा है? नहीं. अच्छा, आपका पहला सर्टिफिकेट में आपको क्या नॉलेज मिली थी, आपको याद है? नहीं. वही मैं कुछ भी याद नहीं है. मैं पूछना चाहता था कि एक ट्रेंड सा आ चुका है स्टूडेंट्स में कि जितना सर्टिफिकेट हम कलेक्ट कर सकते हैं उतना करेंगे, क्योंकि हमारा सीवी स्ट्रांग होगा. सीवी ऐसे स्ट्रांग नहीं होता. आप समझिए, अगर आपको साइबर में इंटरेस्टेड है तो आप क्वेश्चन डॉक्यूमेंट का वेबिनार क्यों अटेंड करेंगे? नहीं, एग्जैक्टली. I'd like to ask you one thing is that कि आपको you have to be smart enough in this field to choose कि आपको कौन से फील्ड में जाना है, क्योंकि फोरेंसिक साइंस एक एप्लीकेशन बेस्ड साइंस है. मतलब एक फील्ड में बहुत सारे आपके पास ब्रांचेस होंगे. तो अगर आपके इंटरेस्ट क्यूडी में है एंड इफ यू आर गोइंग टू साइबर, तो उस वेबिनार का कोई वैल्यू नहीं रहता आपके लाइफ में. नहीं रहता. मतलब ये क्या हो मालूम, स्टूडेंट्स के अंदर कॉम्पिटिशंस है. अभी एक स्टूडेंट डालेगा पोस्ट, I'm thankful to this platform for organizing this wonderful webinar. Grab this knowledge. I have used this session. मतलब ये लॉकडाउन हमने यूज किया, यूटिलाइज किया इस नॉलेज को गेन करने के लिए. ये सिर्फ बकवास है. एग्जैक्टली. ये बकवास है. आपको मतलब लोग तो सुनते भी नहीं है. सुनते भी नहीं. अरे भाई, मैं खुद नहीं सुनता. मैं खुद उसको डाल के म्यूट करके मैं पबजी खेलता बैठता हूँ. मैं खुद नहीं सुनता इस चीज को. ये कोई नहीं सुनता. अगर है स्टूडेंट्स, मतलब थोड़े स्टूडेंट्स हैं जो मतलब पैसा इन्वेस्ट करने के बाद, अगर बिना पैसे इन्वेस्ट करे भी नॉलेज मतलब कुछ गेन करने के लिए आते हैं,
हैं स्टूडेंट्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा, मैंने ऐसे कई सारे वेबिनार्स के इन्फॉर्मेशन को स्क्रीनशॉट्स लेकर और उसको वर्ड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करके उसका प्लेगरिज्म रिपोर्ट निकाला था, और उस प्लेगरिज्म रिपोर्ट ने मुझे ये दिखाया कि ये इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल है। एग्जैक्टली। ओके, सो ये जो हाँ, ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है ना फ्री में, ये आके ऑलरेडी आपको इंटरनेट पे मिल ऑलरेडी जाएगी, आपके वेब पे होता है ये सारी चीजें। आई एग्री। ये होता है। और जो ये चीज मतलब एक्सपर्ट को लेकर आकर आपको यहाँ पर सिखाते हैं, मतलब एक्सपर्ट आके उसके एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर बात करते हैं, वो जो केसेस हैंडल करे हैं उस चीज के ऊपर बात करते हैं, और वो बुक्स का इंफॉर्मेशन नहीं देते। और आपको ये आपने अपना 3 इयर्स और 2 इयर्स मतलब 3 to 5 इयर्स आपने एमएससी फोरेंसिक साइंस, बीएससी फोरेंसिक साइंस को दिए, और आप सिर्फ 2 मतलब 2-3 आवर्स में आप सारा फोरेंसिक सीख लोगे, जो भी आप वेबिनार अटेंड कर रहे हो। एग्जैक्टली। ये नहीं सीख सकते। तो आपको पहले समझना चाहिए हम कौन से फील्ड में जाना चाहते हैं। हमें डिजिटल में जाना चाहिए, ओके, हमारा बैकग्राउंड क्या है, बीएससी में ये है और एमएससी में ये है, और इसके बाद हमें सर्टिफिकेशन कोर्स कुछ करना चाहिए, जो जैसे सर्टिफाइड एथिकल हैकर, इस चीज का बहुत सारा ट्रेंड है, और कंप्यूटर हैकिंग जो रहता है, सर्टिफाइड कंप्यूटर हैकिंग फोरेंसिक्स, ये जो रहता है, ये चीज में आपको सर्टिफिकेशन करना है। और सर्टिफिकेशन करने के बाद भी आपको चैलेंजेस बहुत सारे मिलेंगे, आपको केसेस हैंडल करना पड़ेगा। और मेन चीज आपको अपने रिज्यूमे के ऊपर काम करना चाहिए। आपका रिज्यूमे यानी अभी रिसेंटली मेरा एक इंटर्नशिप कंप्लीट हुआ, मतलब वो जो इंटर्नशिप जहां से कंप्लीट हुआ वो आके लीगल डिजायर से है। अगर मैं ये बोलूं तो कल को ये कोई वीडियो देखेगा तो वो आराम से समझ जाएगा मेरा इंटर्नशिप यही पर ही खत्म हुआ, यही पर। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ लीगल डिजायर से खत्म हुआ, ये मेरा हुआ था। तो वहां का इनका जो सिलेक्शन हुआ था स्टूडेंट्स का, रिक्रूटमेंट जो किए थे इन्होंने इंटर्नशिप के लिए, इनको नियरली 150 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। तो आउट ऑफ 150 दे हैव सिलेक्टेड ओनली 25 स्टूडेंट्स। ओके। तो किस बेसिस के ऊपर इन्होंने सेलेक्ट किया? ना तो ये फोन कॉल का इंटरव्यू लिया, ना तो कुछ और के इंटरव्यू लिया, कुछ भी नहीं, बस हमने रिज्यूमे डाला और हमें मेल मिला कि हम सेलेक्ट हो गए। तो आपको किस बेसिस के ऊपर आपको मिला? रिज्यूमे। यहाँ पर आपके मार्क्स मैटर नहीं करे, आपके सर्टिफिकेशन मैटर नहीं करे, यहाँ पर मैटर किया तो सिर्फ आपका स्किल। मतलब जो हम लोग डालते हैं ना, टीम मैनेजमेंट, टीम प्लेयर, हार्ड वर्किंग, पेशेंस, ये सब फोरेंसिक साइंस में उतना काम नहीं आता। यहाँ पर आपको उस फील्ड में जो नॉलेज आता है उसी फील्ड का आपको स्किल्स भी ड्राफ्ट करना पड़ेगा। उस फील्ड के टेक्निकल स्किल्स आपके पास होने चाहिए अच्छे खासे। हाँ, अगर आप क्वेश्चन डॉक्यूमेंट कर रहे हो तो आपको क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या-क्या स्किल्स ड्राफ्ट कर सकते हैं, आप उस चीज को डालना चाहिए। अगर आप फोरेंसिक साइकोलॉजी में कुछ कर रहे हैं तो आपको उस बेसिस के ऊपर आपको हैंडल करना चाहिए। मतलब आपके जो स्किल्स रहते हैं उसी चीज को ड्राफ्ट करना चाहिए। अभी आप भी स्टूडेंट थे, आप मतलब बीएससी में, अब आपको अच्छे से याद है, अगर आप रिज्यूमे बनाना चाहते हैं तो अगर आपका कोई फ्रेंड ने रिज्यूमे बना लिया तो आप उसके पास कोई वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं पूछते एडिट करने के लिए खुद के लिए? मैं भी यही कर रहा था। हमें बैठ के रिज्यूमे भी नहीं बनाते, हम क्या करते हैं, जो फ्रेंड ने कॉपी लिखा है पेस्ट करते उसी हैं, को हम ले लेते हैं, अपनी कॉपी चीजें पेस्ट एडिट कर करते हैं, देते हैं। बस ये कर लेते हैं। और फिर भी हमने कर लिया, लेकिन एक ही रिज्यूमे 1 साल 2 साल चलता रहता है। हमने आज साइबर फोरेंसिक साइंस को यही रिज्यूमे फॉरवर्ड किया, कल क्वेश्चन डॉक्यूमेंट को भी यही रिज्यूमे फॉरवर्ड किया, और दूसरे फील्ड को भी यही रिज्यूमे फॉरवर्ड किया। आपको पता है ये Naukri.com सब कैसे काम करती है? ये सब स्किल बेस्ड के ऊपर ही काम करती है। तो आप जब ये समझ लोगे तो आपको आपकी जो जॉब प्रोफाइल रहेगी, आप जिस चीज के ऊपर अप्लाई कर रहे हो उस चीज के अकॉर्डिंग आपको स्किल्स सेट करने पड़ेंगे जी। और आपको चेंज करके अप्लाई करना पड़ेगा। ये एक मेन थिंग है। आपको ये हम बोलते रहते हैं ना, हम थियरी से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए बोलकर, लेकिन फोरेंसिक साइंस में प्रैक्टिकल से भी बढ़कर स्किल्स आता है, ये आपको कोई नहीं बोलेगा। और ये स्किल्स आपको प्रैक्टिकल जितना करोगे उतने ज्यादा आपको एक्वायर होंगे, राइट? यस, और ये स्किल्स आपको सिर्फ देखने के लिए इंटरनेट पे वर्डिंग मिल जाएगा, लेकिन अगर आप पेशेंस डाल दोगे तो आपको एक्चुअल में वो पेशेंस चाहिए। अगर आपको एक्चुअल में वो पेशेंस नहीं रहा तो आपके रिज्यूमे में जो डाला है कल को आप उसको फेस करना पड़ोगे तो वो पेशेंस नहीं रहेगा। तो आप अपने स्किल्स के ऊपर काम करो। पहले अंडरस्टैंड योर कैपेबिलिटी, आपकी नॉलेज को अंडरस्टैंड करो, आपका इंटरेस्ट अंडरस्टैंड करो, और उसके ऊपर ही आप काम करो। जो चीज आपके अंदर है उस चीज के ऊपर अगर आप काम करोगे तो आपको वो मिलेगा। उस चीज को छोड़कर अगर आप फ्रेंड को फॉलो करोगे, किसी और को फॉलो करोगे, तो आप उसमें सक्सेसफुल नहीं रहोगे। वो एक चीज। और दूसरी चीज, हमारे फोरेंसिक फील्ड में मतलब हर एक बंदे के पास ये एक
आपको इन्फॉर्मेशन ये कोई भी नहीं अब तक नहीं दिया होगा। मैं बता रहा हूँ आपके फर्स्ट चैनल में, मतलब हर एक फोरेंसिक स्टूडेंट्स को एक एडवोकेट रखना चाहिए कांटेक्ट में। ओके, एक एडवोकेट, क्रिमिनल लॉयर चाहिए, या फिर पोक्सो, मतलब जो चाइल्ड के ऊपर जो केस लड़ते हैं, आप उन वैसे लॉयर को अपने कांटेक्ट में रखना चाहिए। Exactly. और आपको एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर, आईपीएस ऑफिसर जो भी रहेगा, आप इनके कांटेक्ट में रखना चाहिए आपको। ओके, और क्योंकि आप इनके साथ ही काम करोगे। ये सब गवर्नमेंट और पुलिस ऑफिशियल्स, ये कोर्ट लॉयर सब फोरेंसिक साइंस से कनेक्टेड है। तो अगर आप इनके साथ एक बॉन्डिंग बनाओगे तो आपको केसेस मिलेंगे, अंडरस्टैंड करोगे। ओके, तो हर एक स्टूडेंट को ये कांटेक्ट बनाना बहुत जरूरी है, और इस चीज के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। और दूसरा, जब आप लोग एमएससी कर रहे हो तो फर्स्ट सेम आपका फ्री में ही जाएगा, उतना बर्डन नहीं रहेगा। और फर्स्ट सेम आपको कंप्लीट होने के बाद जो हॉलीडेज आपको रहेंगे, इस हॉलीडेज फॉर एग्जांपल 2 मंथ्स का हॉलीडे है या फिर 1 मंथ का हॉलीडे है, तो आप क्या करेंगे, कहीं आपके पुलिस स्टेशन रहेंगे होम टाउन में या फिर कहीं पर, तो वहां पर आपको इंटर्नशिप करना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो, कब तक अपने सराउंडिंग्स में आप नेटवर्क नहीं बनाओगे, तब तक आप कहीं पर भी नेटवर्क नहीं बना सकते। Exactly. आप अपने कोर्ट्स को देख लो, मतलब कोर्ट है, इनके फोरेंसिक एक्सपर्ट्स है वहां पर। ये जो केसेस रहेंगे वो लॉयर्स वहां पर उनको बुला लेंगे, वो उनका केसेस हैंडल करेंगे। और ये जो लोकल कोर्ट्स हैं डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, तालुक्स के अंदर जो कोर्ट्स रहते हैं, ये कोर्ट्स के अंदर आपको फोरेंसिक एक्सपर्ट्स नहीं मिलेंगे। और ये जो केसेस रहेंगे, अब मेरे प्लेस से जो भी केसेस रहेगा क्वेश्चन डॉक्यूमेंट का, ये आके बैंगलोर जाता है केस। ये लोग बैंगलोर कहीं फोरेंसिक साइंस को या फिर प्राइवेट एजेंसीज को फॉरवर्ड करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर अपना नेटवर्क बना लोगे तो आपको वो केसेस मिलेंगे। Exactly. आप उसको हैंडल कर सकते हैं। This was something I wanted to ask you. Actually, जैसे अगर हम इंडिया के सिनेरियो देखें, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है वो कुछ सिटी बेस्ड सेंट्रिक है, लाइक कुछ सिटी बेस्ड ही है, दिल्ली, बैंगलोर एंड मुंबई, पुणे। तो ये कुछ 4 सिटीज है जहाँ पे सबसे ज्यादा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं एंड वो लोग काम हैंडल कर रहे हैं। लेकिन बाकी मेजर सिटीज ले लो या टायर 2 सिटीज ले लो आप, या टायर 3 सिटीज ले लो, जहाँ पे एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, यू वोंट फाइंड एनी प्राइवेट फोरेंसिक एक्सपर्ट ओवर देयर। तो अगर वो जो लोग कहते हैं ना कि जॉब्स नहीं है, स्कोप नहीं है, अभी उनको एक चीज होगा, ये एक ऐसा दुनिया है यहाँ पे कोई आपको स्पून फीड करके जॉब नहीं देगा, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो एटलीस्ट नहीं देगा, फिंगरप्रिंट करते हो, क्योंकि वो हमारे कोर्स स्ट्रक्चर में ऑलरेडी होता है। एंड यू कम ओवर टू योर प्लेस एंड स्टार्ट मेकिंग कॉन्टैक्ट्स विद द लॉयर्स इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। एंड अगर वहां पे आप प्राइवेट एक्सपर्ट अपना प्राइवेट प्रैक्टिस अगर स्टार्ट करते हो, तो यू विल एटलीस्ट समथिंग दैट विल फीड योर फैमिली एट द एंड ऑफ द मंथ। कोई लेकिन इस बारे में नहीं सोचता है एटलीस्ट। अभी देखिए, अभी आपको जितने भी एजेंसीज मिलेंगे इंडिया के अंदर, कम से कम 30 to 35 एजेंसीज है। और कुछ एजेंसीज अपना नाम तक नहीं, मतलब इंटरनेट पे वो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन फिजिकली वो एग्जिस्ट करती है। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है, ये जो प्रिटेंड करती है हम रजिस्टर्ड हैं, फोरेंसिक एजेंसी रजिस्टर्ड काउंसिल है, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि अपने इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी फोरेंसिक काउंसिल नहीं बना, एग्जिस्ट ही नहीं करा। फोरेंसिक काउंसिल नहीं बना, एग्जैक्टली। वो लोग क्या करते हैं, आपको एमसीए के अंदर रजिस्टर करवाते हैं अपने कंपनी को। हाँ, आपको कोई भी बार काउंसिल नहीं है, मेडिकल काउंसिल जैसा रहता है वैसा काउंसिल आपको फोरेंसिक काउंसिल नहीं रहा है। और ये जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स है, ये अपने कंपनी को रजिस्टर करा लेते हैं, मतलब जो भी रहेगा ये जो प्राइवेट लिमिटेड के अंडर, ओके, प्राइवेट एक्सपर्ट्स के अंडर ये रजिस्टर करवा लेते हैं, जैसे हम कॉर्पोरेट कंपनीज को रजिस्टर करते हैं वैसे ही। एग्जैक्टली। तो ये इस रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं कि ये फोरेंसिक रजिस्टर्ड है। जब खुद की फोरेंसिक काउंसिल ही नहीं इंडिया के अंदर, तो रजिस्ट्रेशन कहाँ का। और आपको इतना ये समझना है कि आप ये जो एक्सपर्ट रिपोर्ट देते हैं अपने लेटर हेड में, वो कोई भी दे सकता है। कोई भी दे सकता है। कोई भी दे सकता है, आप भी दे सकते हो। आपने बीएससी कंप्लीट किया, आपको नॉलेज है उस चीज के ऊपर, तो आप जाके काम करो। अगर आप जाके लिंक्डइन में चेक करो, 13 इयर्स, 14 इयर्स, 17 इयर्स डिजिटल एंटरप्रेन्योर है स्टूडेंट्स। और वो सिर्फ 10th स्टैंडर्ड में या फिर इंटरमीडिएट क्लासेस में है। उनके पास हमारे जैसे डबल डिग्रीज नहीं है, सर्टिफिकेशंस नहीं है। ये सिर्फ उनका नॉलेज और उनकी स्किल्स के बदौलत है, वो उन्होंने अपना खुद का प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया। आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट मैटर नहीं करता, आपको सिर्फ नॉलेज ही मैटर करता है।
Okay, bro. Bro, I would ये like. बहुत सिंपल। या हाँ या या बोलिए। प्लीज, हाँ आप बोल दो, कंप्लीट कर लो, ये कुछ अलग ही क्वेश्चन है मैं आपको करना चाहता था, कंप्लीट फिर मैं हाँ पूछता हूँ। देखिए, अभी हमने जो स्कोप बोल रहे हैं ना, ये स्कोप हम जब इंडिया के अंदर बात करेंगे, हम सिर्फ CFSL RFSL के बेसिस पे ही बात करेंगे, क्योंकि वहां या पर का उनका जो रिक्रूटमेंट मेथड है, हाँ। जो प्रोसीजर है, वो बहुत ही मतलब कम स्टूडेंट्स को रिक्रूट करता है। तो हम्म। इसी वजह से स्कोप नहीं है। नहीं है। तो अगर आप CFSL छोड़ दो, RFSL छोड़ दो, अगर आपको फोरेंसिक साइंस में सर्वाइव करना है, तो आपकी सराउंडिंग्स में देखो, आपको मतलब ये नॉर्मल पब्लिक को आपको बहुत जरूर मतलब आपकी बहुत जरूरत है। आप एज ए हम्म। कंसल्टेंसी काम करो, एग्जैक्टली। आप केसेस को स्टडी करो, और हम्म आपको लॉयर्स को एडवाइस करो एज ए एडवाइजरी। हम्म। आप केसेस लो, आप खुद से सीखो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट करते कैसे हैं, क्योंकि मेजोरिटी आपको प्राइवेट में यही मिलेगा। तो आपको क्वेश्चन हम्म डॉक्यूमेंट और साइबर पे ही ज्यादा काम करना पड़ेगा। और चाहे तो हम्म। आप फोरेंसिक साइकोलॉजी जा सकते हैं, काउंसलिंग सेक्शंस ले काउंसलिंग सकते हैं। सेक्शंस कर सकते हो। हाँ ये कर सकते हैं। जो अब ट्रेंडिंग में है फोरेंसिक, आप उसके ऊपर फोकस करो। और ये जो हम्म डीएनए सब है, आप इसको जो मतलब बायो एक्सिस डीएनए रिसर्च सेंटर, उनके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, वहां पर हम्म डीएनए टेस्टिंग होती है। हम्म। तो वहां पर अप्लाई करो, वहां पर कोई भी फोरेंसिक का बंदा नहीं जाता, वहां पर सिर्फ MSc माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी ये स्टूडेंट जाते हैं, वहां पर जाते हैं। फोरेंसिक नहीं जाता। वहाँ पे आप जाओ फोरेंसिक का वहां पर, काम भी नहीं है। हाँ वहां पर भी क्रिमिनल का ये सब चलता रहता है। हाँ। तो वहां पर जाओ, आप काम करो। आप ये मतलब हमें अक्सर दूसरी फील्ड में भी ट्राई करना चाहिए, हम जहाँ पर हम अपना फोरेंसिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम्म आपको फ्लिपकार्ट अमेजन पे भी मिल जाएगा, हम्म। सिक्योरिटी के नाम से मिलेगा, लेकिन आप वहां पर एक्चुअली सिक्योरिटी गार्ड का काम नहीं करेंगे। या हाँ, क्योंकि ऐसा आपको पोस्ट मिलता है कि एज ए सिक्योरिटी कुछ रहता है उनका पोस्ट, लेकिन आप हम उसको ये लेते हैं कि हम सिक्योरिटी में काम करेंगे एज ए सिक्योरिटी गार्ड। ये हम्म। नहीं है, हम एज मतलब सिक्योरिटी यानी कंपनी की सिक्योरिटी जो भी रहता है वहां पर, तो वहां पर हम काम करेंगे। और दूसरा फायर का भी रहता है उनके अंदर, तो वहां पर काम करो, ढूंढो या कहाँ पर मिलेगा आपको। या ब्रो, सो ब्रो आई वुड लाइक टू आस्क यू अबाउट योर ऐप जो आपने डेवलप किया है, फोरेंसिक साइंस ऐप, इंडिया की पहली ऐसी ऐप जो एग्जिस्ट करता है प्ले स्टोर में। एंड व्हेन यू टोल्ड मी अबाउट दैट ऐप, आई सीरियसली लाइक दैट ऐप बिकॉज वो एक वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके जितने भी ओवरऑल प्रॉब्लम हो सकता है फोरेंसिक साइंस को लेके, चाहे वो रिसर्च पेपर्स ढूंढना हो, एजेंसीज ढूंढना, या कॉलेजेस ढूंढना हो, या फिर जॉब के बारे में ढूंढना हो, या फिर अपनी रिज्यूमे कैसे बिल्ड करना हो उसके बारे में जानना हो। तो ब्रो, हाउ डिड यू कम अप विद दिस आइडिया, एंड आपको क्या हिट किया कि मुझे एक ऐसा चीज बनाना चाहिए एंड लोगों को हेल्प करनी चाहिए? ऐप डेवलपमेंट करना चाहिए, इसके ऊपर कोई ऐप बनाना चाहिए बोल के। तो जब मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब कंप्लीट हुआ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को पूछ रहे थे कि फोरेंसिक साइंस हमें जाना चाहिए, मतलब हमें कैसे जाए, और कॉलेजेस कितने हैं, स्कोप क्या है। तो एक ही सवाल का जवाब मतलब बार बार देना अच्छा नहीं लगा मुझे। एग्जैक्टली। मतलब आज आपको दे दिया, कल सेम दूसरा बंदा पूछेगा सेम सवाल, और मैं सेम जवाब दूंगा उसको। तो मैंने क्या किया, एक ऐसा ऐप ही बना लूं, क्योंकि मुझे पहला मेरा जब ऐप का थॉट आया, तो मुझे बस बुक्स का ऐप बनाना चाहिए था। मतलब हाँ। बुक्स कुछ इंक्लूड कर लूं तो बुक्स का ऐप बन जाएगा, मैं इसी को हम्म डाल दूंगा। तो हम्म फिर बुक्स का ऐप मैं बनाते बनाते मैं क्या किया, फोरेंसिक का कुछ इन्फॉर्मेशन डालेंगे इसके अंदर। हम्म तो मैंने वहां पर अबाउट फोरेंसिक, फोरेंसिक फैक्ट, कॉलेजेस, लॉ, लॉ के अंदर हम्म आपको जनरल एक्सेप्शंस, हम्म प्रॉपर्टी, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ऐसे हम्म सारे मिल गए। तो मैंने इसको डाल दिया। रिसर्च पेपर्स का थॉट आया तो मैंने खुद डाल दिया। और यहाँ पर किसी की टीम वर्क का काम नहीं था, ये जो भी इसका आइडिया था वो सिर्फ मेरा खुद का था। और दैट्स इसमें जो ग्रेट। भी प्रॉब्लम होगी, कल को जो कुछ भी प्रॉब्लम होगा, तो इसका रिस्पॉन्सिबल भी मैं खुद ही रहूंगा। तो यहाँ पर मैंने रिसर्च पेपर्स भी डाल दिए, और यहाँ पर मैंने जी थोड़े बुक्स भी डाल दिए। जी और जी इस जी। बुक्स की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आए, मतलब मुझे बहुत सारे लोग ने एडवाइस किया कि इस चीज के ऊपर आपको कॉपीराइट लगेगा, हाँ हाँ। बुक्स के ऊपर कॉपीराइट लग सकता है। जी तो जी मैंने जी। मैंने हाँ, कॉपीराइट लग सकता पर है, अगर आप क्योंकि लिंक यहाँ पर डाल देते हो बुक्स के तो आपको कॉपीराइट नहीं लगता, आई गेस। देखिए, हमारे चीज में मतलब इंटरनेट पे सारा चीज फ्रॉड ही चल रहा है। और ये हाँ। फोरेंसिक भी फ्रॉड में ही चल रहा है। मतलब हम जो फोरेंसिक फील्ड को एथिकली यूज करना चाहिए, इसको हम जी अनएथिकली यूज कर रहे हैं। जी। ओके। तो अगर आप यहाँ पर अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, किसी का भला कर रहे हैं, आप आगे जा रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, आपको
पीछे लूंगा, नीचे मतलब मैं आपको ऐसे ऐसे थॉट एग्जैक्टली आपको एग्जैक्टली। ऐसे ऐसे थॉट्स डालूंगा मैं कि मैं आपको ये बताऊंगा आप ये जो कर रहे हैं आप इस चीज के ऊपर ये लगेगा वो लगेगा। हाँ भाई कॉपीराइट लगेगा, कब लगेगा? आप जब फेमस हो जाओगे। ओके, उसके आपका पहले नहीं आप लगती। मिनिमम उसके पहले कैसे लगेगी, मतलब उस ऑथर तक कैसे पहुंचेगी? एग्जैक्टली। नहीं पहुंचेगी। अगर आप उसको खुद पहुंचाए तब पहुंचेगी, मतलब आपको वो ऑथर कांटेक्ट है, कनेक्ट है तो आप पहुंचाओगे, क्योंकि मुझे लॉस होने के लिए। अगर वो ऑथर तक रीच होना चाहिए तो मेरे उतने डाउनलोड जाना चाहिए, मतलब लाख 2 लाख के ऊपर तो जाना चाहिए ना। अब हम जब तक ग्रो नहीं करेंगे तब तक मैं उसको रखूंगा, जब कॉपीराइट लगेगा तब देख लेंगे। देख तब लेंगे तक सही स्टूडेंट्स में को सही में। हाँ, जब तक उस एग्जैक्टली। स्टूडेंट्स को वो बुक्स का यूज हो जाएगा जो रहेगा। अभी हमने ये केस मतलब आपका केस हम मतलब हम ये लॉयर को अपॉइंट करेंगे आपके लिए। ऐसे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, मतलब आपका सपोर्ट भी करेंगे, आपके अगेंस्ट भी खड़े जी रहेंगे। जी। और ये जो मैंने आपने हाँ आपने अभी ये फोरेंसिक बस में आपने जो ये स्टार्ट किया है पॉडकास्ट, राइट? हाँ हाँ। ये फर्स्ट है। फर्स्ट है। ये आपने जो हाँ ये फर्स्ट है। एग्जैक्टली अभी तक ऐसा किसी ने स्टार्ट नहीं किया। आपने नहीं जो क्या। ये अभी लाए हैं इम्प्लीमेंट किया, ये बहुत अच्छा है। इससे एग्जैक्टली। ये करो। धीरे 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 I'll do it start. Bro, leaving this kind of controversies aside, so I'd like to ask you the next question is that how do you see these forensic scenario, like the job culture in India after 5 years or 10 years from now? Will it be growing? Will it be evolving? Yeah. Yes, it will grow. Definitely, it will grow because we all know that there is there is one bill which has to be passed where in every police station of India there should be a forensic expert, Expert. right? Yeah. हाँ, जब आपको इंडिया के अंदर जितने पुलिस स्टेशन है वो कुछ काउंट बहुत था सारे मैं बहुत भूल गया, सारे। तो हाँ बहुत सारे पुलिस स्टेशन हैं। हाँ। आपको इसी पुलिस स्टेशन में आपको एक्सपर्ट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपको विलेज से सब एक्सपर्ट प्लेस कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको मेन मेन सिटीज के अंदर जहाँ पर क्राइम रेट ज्यादा है, जहाँ पर एक्सपर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, उस प्लेस में आपको एक्सपर्ट प्लेस कर देंगे। और बाकी के जो लोकल पुलिस स्टेशन रहेंगे आपको इसको मतलब कवर अप करेंगे, ये कम से कम एक 3-4 पुलिस स्टेशन को इकट्ठा करके वहां पर एक एक्सपर्ट को अलॉट कर देंगे। तो आपको जब फोरेंसिक एक्सपर्ट की मतलब ये जो वैकेंसी आएगी, ये जो जॉब स्टार्ट होगा, तो अभी जो स्टूडेंट्स है ये एज ए एक्सपर्ट काम कर सकते हैं। कम कर सकते हैं। हाँ, तो आप जब तक वेट ना करें, मतलब जब तक ये बिल पास होगा, जब तक ये रिक्रूटमेंट आए, तब तक ना वेट करें। आप अपने लोकल, अगर आप फॉर एग्जांपल मैं बैंगलोर में हूँ, मैं कोलार में हूँ, तो यहाँ पर मुझे पता है कि मैं मेरे कोलार के अंदर कोई भी फोरेंसिक का स्टूडेंट नहीं है, और है भी वो फील्ड चेंज कर चुके हैं। मतलब एमएससी के बाद जॉब नहीं था तो जॉब मतलब दूसरे फील्ड में चले गए हैं। तो ये मुझे प्लस पॉइंट है, एग्जैक्टली। ना कि मैं इसको नेगेटिव लूं। ये मुझे प्लस पॉइंट है। मैं क्या करूंगा, अभी यहाँ पर मुझे अपना इमेज बनाना है। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये आपके लिए भी एप्लीकेबल जी करेगा जी और जी बाकी के फोरेंसिक स्टूडेंट्स को भी एप्लीकेबल करेगा। जी तो जी। हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर अभी मुझे फोरेंसिक साइबर फोरेंसिक में नॉलेज है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एसपी को जाके अप्रोच करूंगा। मैं आपके पुलिस ऑफिशियल्स को एक ऑफिशियल ट्रेनिंग देना चाहता हूँ इस चीज के ऊपर, और वो ऑब्वियसली अब एक्सेप्ट ब्रो करेंगे। एक मिनट, पुलिस वाले क्या पे करते हैं, मतलब जो ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग दिया जाता है उसके बिहाफ में क्या करते हैं वो लोग? मैंने तकरीबन बहुत सारे पुलिस स्टेशंस को ऐसे ये वर्कशॉप्स और फिर ये कंडक्ट कर चुका हूँ। तो यहाँ पर पे नहीं करते कुछ भी, और अच्छा। हम ये एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए, मतलब कुछ पे करेंगे बोल के थोड़े थोड़े लोग दे देते हैं, लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस नहीं जैसे रहेगा कि हम एक चीज देंगे बोल के। ये जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जो बड़े बड़े प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, हाँ वो लोग ट्रेनिंग देते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, पुलिस ऑफिसर्स को, हाँ, वो चार्ज करते हैं, वो चार्ज चार्ज करते हैं करते ना? हैं। हाँ हाँ, वो अगर फॉर एग्जांपल अगर वो क्राइम सीन के ऊपर कोई वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हैं तो वो हाँ। मटेरियल सब लाते हैं, और ये उतना नॉर्मल फीस कुछ रखते हैं और उसका चार्ज लेते हैं ये लोग। लाइक इट इज पर पर्सन अटेंडिंग द वर्कशॉप और पर डे? नहीं, ऐसा नहीं रहता, मतलब ये पर डे का मतलब उस वर्कशॉप के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने ड्यूरेशन का कितना है और ये क्या सिखा रहे हैं, और उस चीज के ऊपर ये फिक्स कर देते हैं। और आपको पुलिस जब ये वर्कशॉप कंडक्ट करेंगे पुलिस लोगों के लिए, तो आपको बहुत सारे पुलिस मिल जाएंगे, मतलब वो खुद मतलब हाँ। एसपी ही आपको बुला लेंगे। एएसआई मतलब एएसआई के पोस्ट से लेकर आपको एसपी तक चले जाएगा ये, एसपी एसपी तक? सर्कल इंस्पेक्टर। हाँ, चले जाएगा ये क्राइम सीन के ऊपर आ जाएगा। अभी लास्ट में हमने फरवरी में एक कहाँ पर कोरमंगला में एक कंडक्ट किया था।
क्लू फॉर एविडेंस के साइट से। अच्छा, तो यू आर वहाँ पर वॉलंटियर ऑफ हमने क्लू फॉर डिजिटल एविडेंस? फोरेंसिक्स, नहीं, मैं किसी का वॉलंटियर बनना नहीं चाहता और मैं नहीं, मैंने किसी के अंडर उनका काम भी नहीं उनका करना एक चाहता। वो देखा था, क्या बोलते हैं उसको, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि अगर कोई भी वहां से कोई ट्रेनिंग या फिर वर्कशॉप करता है तो दे बिकम अ डिफैक्टो वॉलंटियर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कुछ। ऐसा है, अभी मैं भी इंटर्नशिप किया है वहाँ पर क्लू फॉर एविडेंस में, और मैं इससे पहले एज ए ब्रांड प्रोटेक्शन इन्वेस्टिगेटर था एंटायर अच्छा साउथ इंडिया के लिए। अच्छा तो यहाँ पर बहुत सारे हमें मतलब ऐसा नहीं कि आप वॉलंटियर में कुछ नहीं कर सकते, वॉलंटियर में आप करोगे क्या भाई? अभी आप लॉकडाउन में लाइक सिर्फ वो उनका डेटा सोशल मीडिया संभालोगे, एडवर्टाइजिंग, लाइक जब, सोशल मीडिया एडवर्टाइज करोगे। अभी न्यूज़ लेटर स्टार्ट हुआ है, ये एक नया धंधा हाँ स्टार्ट कर लिए हैं देखा न्यूज़ मैंने लेटर बोल के। जस्ट दो दिन पहले ही। अभी इंडिया के अंदर 2 न्यूज़ लेटर है, 2 कंपनीज न्यूज़ लेटर चला रही है आई लाइक टू फोरेंसिक पे। कन्फेस ब्रो, बिकॉज मैंने 2-3 ऐसे वर्कशॉप, ऑनलाइन वर्कशॉप अटेंड करी है, वर्कशॉप हम्म, वेबिनार। तो उसमें से एक फनिंदर सर का वर्कशॉप भी मैंने अटेंड किया था हम्म, फौजी के ऊपर। तो ट्रस्ट मी ब्रो, इट वाज द बेस्ट वर्कशॉप, ऑनलाइन वर्कशॉप दैट आई अटेंडेड among all those that I attended during this lockdown. So मुझे ये या कि he is a very good teacher, you know, he's a very good teacher because उन्होंने जितनी, इट्स एक्सपीरियंस, yeah, his उनको experience, अच्छी खासी एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस तो आई एम नॉट टेकिंग दैट फैक्टर इनटू कंसिडरेशन। जितने भी लोग ये वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हैं, जितने भी इंस्ट्रक्टर्स थे, अलग अलग हम्म, among all those, among all of them, फनिंदर सर एक ऐसे लगे मुझे जिन्होंने एफर्ट डाला है अपने साइड से, लाइक ही हैज प्रिपेयर्ड अ फुल हम्म, शीट, कि सिर्फ वर्कशॉप करने के बाद ऐसा नहीं कि तुम चले जाओ, वर्कशीट खत्म करो, देन हर एक चीज बताने के बाद पूछते थे बकायदा, लाइक ही यूज्ड टू आस्क तो इट वाज वेरी मच इंटरैक्टिव, लाइक कोई हम्म, फील करेगा उसमें, लाइक इट वाज अ 3 आवर्स वर्कशॉप, 2 days, 3 hours ईच डे। तो आई नेवर फेल्ट बोर, हम्म। कि तो आधे घंटे में बोर हो जाता था, मैं म्यूट करके कुछ और करने लगता था।